Hello students, welcome back. I hope you all are fine. Students, today is the day of English literature and in the last video we started chapter 3 washing clothes with my mom. Students, today we will discuss the rest part of the chapter, but before doing that let's discuss the previous part in brief. Okay students, in this chapter, we discussed the story of a boy who had grown up in a family of 14 people and they had only one bathroom. So, his mother learned him the way to get sufficient bath time was to get up early in the morning before his siblings. So, his mother gave him an old wind-up clock to wake up early in the morning. The next morning, the boy woke at 5:30 by using the alarm and had a bath. After completing the bath, when he was going upstairs, he heard buzzing in the basement. When he went to the basement and saw that his mother was singing while washing the clothes. Boy asked to his mother then that why are you singing? So she replied that she is enjoying her work. She is doing laundry, so she is enjoying her work because there is no use of being upset. The boy saw that the mom is still using an old wringer washer, but his mom was happy that she and dad had collected enough money to get a new clothes dryer. Because she is using an old-fashioned dryer, this is not the modern ones as they have today, and the lint filter of that machine had to be cleaned after every load. The boy also said to his mother that dad is doing his paperwork, so she says that yes, I know, because it is the only time when the house is quiet enough to concentrate. He can do his work very well at this time, so he is doing paperwork and I am doing laundry. So the boy asked to his mother that can I help you? So mother said sure. Students, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर को. Let's start the next part. Mom started another load in the dryer and placed a large towel on the basement floor in front of the dryer. Why don't you lie down and catch a nap until we are ready for another load? अब मॉम ने क्या है उस ड्रायर में अपना दूसरा लोड स्टार्ट कर दिया था. एक लोड वो वॉश कर चुके थे, दूसरे लोड को उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने बेसमेंट का जो फ्लोर था वहाँ पर एक टॉवेल जो था उसको बिछा दिया था. स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि यहाँ पर उन्होंने बेसमेंट के फ्लोर पर एक बड़ा सा टॉवेल रखा हुआ है और उन्होंने उस बॉय से कहा वाई डोंट यू लाई डाउन एंड कैच ए नैप, कि तुम यहाँ पर लेट क्यों नहीं, लाई डाउन मतलब तुम यहाँ पर लेट जाओ, एंड कैच ए नैप. नैप का मतलब होता है कि जैसे हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, झपकी लेना है जिसको हम कहते हैं. 5 to 10 मिनट्स के लिए तुम जो है यहाँ पर लेट जाओ जब तक कि दूसरा जो लोड है वो रेडी नहीं हो जाता, कि जो हमने मशीन में जो लोड डाला हुआ है वो जब तक धुल नहीं जाता, क्लोथ्स वॉश नहीं हो जाते, तब तक तुम एक नैप ले लो, मतलब झपकी ले लो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ. द एयर फ्रॉम द ड्रायर वॉज वार्म एंड comfortable. I slept until the dryer buzzed. I was thrilled when mom taught me to clean the lint filter and to place the dry clothes on a folding table. She made me feel useful. I remember how she complimented me on a job well done, although I remember dropping most of the clothes before I got them on the table. अब उस ड्रायर में से जो हवा आ रही थी वो काफ़ी वार्म थी और कंफर्टेबल थी, गर्म थी और कंफर्टेबल थी. एंड आई स्लेप्ट अंटिल द ड्रायर बस्ट. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब मशीन में कपड़े वॉश हो जाते हैं तो उसके बाद एक बज़र बजता है, बेल बजती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो उसमें कपड़े जो हैं वो वॉश हो गए हैं. तो उसका बॉय का भी ये कहना है कि मैं तब तक सोया जब तक कि वो ड्रायर जो था उसमें से बजिंग की आवाज़ नहीं आने लगी. एंड आई वॉज थ्रिल्ड, मैं खुश था कि मॉम ने मुझे यह सिखाया कि उस लिंट फिल्टर को कैसे क्लीन करना है और ड्राई क्लॉथ्स को फोल्डिंग टेबल पर कैसे रखना है. शी मेड मी फील यूज़फुल. उन्हें मतलब कि मुझे भी ऐसा फील हुआ
उन्होंने मुझे ये फ़ील करवाया कि मैं भी यूज़फुल हूँ, मतलब कि मेरा भी कुछ यूज़ है, मैं भी कुछ काम कर सकता हूँ, कि मुझे इस घर में मेरी भी कुछ इम्पोर्टेंस है। एंड आई रिमेंबर हाउ शी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन अ जॉब वेल डन। और मुझे याद है कि उन्होंने किस तरीके से मेरी जॉब जो मैंने काम किया था उसमें मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कोई भी प्रेज़ करना, तारीफ़ करना किसी की। उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उसने जो क्लॉथ्स थे, ड्राई क्लॉथ्स, उनको फोल्डिंग टेबल पर उसने रखा था, तो उसके लिए उसे उसकी मदर ने कॉम्प्लीमेंट दिया था। When my elder sister woke at 6 o'clock, they took their bath and then helped mom carry the folded clothes upstairs. That was a ritual that I hadn't noticed until that morning. जब मेरी बड़ी सिस्टर 6 o'clock पे उठी, उन्होंने अपना मतलब कि बात लिया और उसके बाद उन्होंने मॉम की हेल्प की, जो क्लॉथ्स फोल्ड करके टेबल पे रखे थे उन्हें अप स्टेयर्स ऊपर लेकर जाने के लिए। और ये एक रिचुअल, मतलब उनकी एक हैबिट थी जो मैंने इस मॉर्निंग से पहले नोटिस नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई सेट द अलार्म एट 4 o'clock. I hurried through my bath and rushed to the basement to help mom. She placed a towel on the floor. I slept until the dryer buzzed, then cleaned the lint filter and stacked the clothes on the table. I slept between loads while mom sang, folded clothes, and washed another load. That was a routine we kept every wash day for several years. नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने 4 o'clock का अलार्म सेट किया। मैंने जल्दी से अपना मतलब कि नहा लिया, बात कर लिया, एंड उसके बाद मैं दौड़ कर, रश्ड मतलब होता है जल्दी जल्दी, जो है मैं बेसमेंट में गया अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए। अब मदर ने फिर से वही जो टॉवल है वो बेसमेंट की फ्लोर पर बिछा दिया और मैं तब तक सोया जब तक कि ड्रायर जो था वो बजिंग की आवाज़ नहीं आने लगी, बजने की, उसमें जो रिंग बेल बजती है उसकी आवाज़ नहीं आई। उसके बाद हमने लिंट फिल्टर क्लीन किया और जो ड्राई क्लॉथ्स थे उनको टेबल पर रखा। आई स्लेप्ट बिटवीन लोड्स वाइल मॉम सेइंग फोल्डेड क्लॉथ्स एंड वॉश्ड अनदर लोड। मैं तब तक मतलब जब तक दोनों लोड्स के बीच में कपड़े वॉश नहीं हो जाते थे लोड्स में, तब तक मैं सोता था और मेरी मॉम गाना गाती थी, कपड़े फोल्ड करती थी और उसके बाद दूसरा लोड जो है उसे वॉश करती थी। और यही एक रूटीन बन गई थी जो हर एक वॉश डे, मतलब वॉश डे मीन्स कौन से वॉश डे, जिन दिनों में वो कपड़े वॉश करती थी, मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो कई सालों तक ये रूटीन जो थी ऐसे ही चलती रही। I look back on those days with fond memories. My parents taught my siblings and me that work wasn't a hardship. Sometimes when I am working, I catch myself singing a song I learned in that old basement and smile. आज मैं मतलब कि जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो एक मतलब कि मेमोरीज़, ऐसी मेमोरीज़ मेरे दिमाग में आती हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरे भाई बहनों को ये सिखाया है दैट वर्क वॉजंट अ हार्डशिप, कि काम करना जो है वो ऐसी कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं, बहुत ईजी है। Sometimes when I am working, I catch myself singing a song I learned in that old basement and smile. आज भी मतलब कि कभी मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो अपने आप को जब गाना गाते, जब मैं काम करता हूँ, कभी कभी मैं सॉन्ग गाने लगता हूँ तो मुझे वो ओल्ड बेसमेंट और उस समय की जो स्माइल है, उस समय की जो मेमोरीज़ है वो मेरे माइंड में क्लिक हो जाती हैं कि किस तरीके से हम उस बेसमेंट में काम करते थे गाना गाते हुए, और हम कितनी मतलब वो किस ऐसी मेमोरीज़ हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ और ना ही भूलना चाहता हूँ। It's amazing to me how seemingly insignificant moments create fond memories that last a lifetime. और मुझे कभी कभी मुझे सरप्राइज़ होता है कि किस तरीके से एक इनसिग्निफिकेंट मतलब अनइम्पॉर्टेंट ऐसे मोमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जो हम कह सकते हैं आम जो मोमेंट्स होते हैं, वो ऐसी मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं जो हमारी लाइफ टाइम तक के लिए हमें याद रहती, पूरी लाइफ टाइम हमें याद रहती हैं। वो मोमेंट्स उस टाइम हमें इम्पॉर्टेंट नहीं लगते, लेकिन जब हम उनको याद करते हैं तो वो हमारे लिए एक ऐसी मेमोरीज़ बना देती हैं जो हमारे पूरे लाइफ टाइम तक रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. Now you have to read again the full chapter with proper explanation. Okay students, thank you, take care, stay home, stay safe.